ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے میرے کمرے میں مت آیا کرو، وہ غصے میں کہتے پلٹا تو اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا، جس کے ساتھ اس کے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا اور اس کے ساتھ انگلینڈ بھیج دیا۔ پہلے دن سے اس نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور وہ جو پردہ کرتی تھی آج دوپٹے میں تھی۔ تبھی وہ حیران تھا، وہ غضب کی خوبصورت تھی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے نظریں چراتے اپنے بیڈ پر جگہ دی، لیکن کچھ لمحوں بعد ہی بے اختیار اس پر جھک گیا اور اس کا سفر بہت خوشگوار گزرا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نصیر کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان دونوں کو اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ جا کر ان کی سیٹ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ میری سیٹ پر بیٹھ جائیں گے؟ یہ میری بیوی ہے، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کا دل بہت بری طرح سے جل رہا تھا۔ اس کے بعد سن کر نہ صرف وہ خود بلکہ انکل بھی حیران رہ گئے اور پھر مسکرا دیے۔ سوری، میں یہاں سے نہیں اٹھ سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے۔ نصیر اسے غصے سے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے اسے انکار کیوں کیا؟ میں چاہتا تھا کہ وہ جلے، انہوں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ چلو اب تم بھی اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو، زندگی میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ اب تو تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والی ہو، تمہیں آنے والی زندگی پر توجہ دینی ہوگی۔ جہاں تک تمہارے شوہر کا سوال ہے تو یہ ٹھیک وقت آنے پر تمہارے پاس خود چل کر آئے گا اور تم سے معافی مانگ لے گا۔ اب وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ انسان کو دیکھ کر ہی پہچان جاتے تھے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ نصیر کو دیکھ کر بھی انہیں اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر اس کے قریب جا کر رکی۔ اسی وقت ہی نصیر کو لینے کے لیے اس کی ایک فرینڈ چلی آئی، جس نے بہت بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ شارٹ سکرٹ کے اوپر چھوٹی سی شرٹ، وہ ہر طرف سے مکمل طور پر عیاں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لی، مگر اس کے شوہر نامدار کو شرم نہیں آئی تھی۔ وہ نارمل انداز میں اس سے گلے ملا۔ یہ دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اپنا منہ بند کرو ورنہ اندر مکھی چلی جائے گی، اس نے غصے سے کہا تو وہ جلدی سے منہ بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ لڑکی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور انگلش میں اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے دل جلا دینے والے انداز میں بولا، یہ میری میڈ ہے، جسے پاکستان سے میری ماں نے بھیجا ہے۔ تمہیں تو پتا ہے یہاں پر پاکستانی کھانے بنانے والی میڈ ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس لڑکی کو ہر طرح کے کھانے بنانے آتے ہیں۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے اپنا تعارف بیوی کی صورت میں کروائے گا، اس کی باتیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لڑکی فرنٹ سیٹ میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ جتنا بھی راستہ گزرا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان بہت پرانی دوستی ہو۔ وہ اپنے آنسو پیتی رہی۔ کیا اس کی اتنی اوقات تھی؟ اس بار اس نے خود سے سوال کیا، پھر یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ ایک بار وہ ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کے بعد اسے کسی کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے فی الحال صرف اور صرف کامیاب ہونا تھا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا تھا، تاکہ وہ نصیر جیسے انسان پر ڈیپینڈ نہ کر سکے۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ فاروق صاحب نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ لندن میں بھی اپنے کئی خوبصورت گھر بنا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک گھر میں ان کا بیٹا بھی رہتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے ماموں کے گھر جاتی تھی، اس کے ماموں اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہی نظر آتے تھے۔ نہ جانے وہ وہاں پر کیسی زندگی گزار رہا ہوگا۔ انہیں ہمیشہ سے یہی ڈر لگتا تھا کہ مغربی تہذیب کہیں ان کے بیٹے پر مکمل طور پر اثر انداز نہ ہو جائے، اور اسی لیے وہ اسے اکثر مشرقی روایات یاد کرواتے رہتے تھے۔ ابھی وہ اسے ملنے کے لیے آتے بھی تھے۔ جس دن ان کا آنا ہوتا اس دن وہ اپنے دوستوں کو منع کر دیتا۔ ان کے جانے کے بعد پھر سے وہ اپنے کمرے میں پارٹیز ارینج کرواتا۔
وہ اس کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے گھر کی چابی وہ اپنی اسی دوست کو دیکھ کر گیا تھا۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ ساری لائٹس جل اٹھی۔ ان کے سب دوست وہاں پر موجود تھے جنہوں میں ہاتھ میں شراب پکڑ رکھی تھی۔ وہ ان میں کافی انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، جبکہ وہ اپنے دوستوں میں کھڑا جشن منا رہا تھا۔ اچانک ہی جیک نامی ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ ہیلو بیوٹیفل، کیسی ہو؟ اس نے انگلش میں اس سے سوال کیا۔ وہ اس کے قریب سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ اس نے جھٹکے سے زینب کے بازو پکڑی اور اسے آفر کی۔ یہ سن کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ بے ساختہ زینب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہاں پر ہونے والا شور یکدم تھم گیا تھا۔ اب سب لوگ حیرت سے اس نادان لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے اس پارٹی کی سب سے اہم شخصیت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ نہ صرف بہت امیر انسان تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی اثر و رسوخ کا بھی مالک تھا۔ اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، کوئی بھی اس سے پنگا نہیں لیتا تھا اور نہ ہی پلٹ کر جواب دیتا تھا۔ اس لڑکی نے تو پوری محفل کے سامنے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو بچ! اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، نصیر درمیان میں آ گیا۔ اس نے اپنی میٹ کو اشارہ کیا تھا کہ وہ زینب کو لے کر کمرے میں چلی جائے۔ اسے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ نصیر غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا یہاں پر آ کر کسی قسم کا تماشا مت کرنا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کوئی تماشا نہیں کیا، وہ انسان مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ تو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ نصیر اب سکون سے اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ باندھ کر اس سے سوال کرنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ تو تم مجھے بتاتی، میں خود اس کے ہاتھ توڑ دیتا۔ تمہیں اس پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک بار پھر سے حلق کے بل چلایا تھا۔ دیکھو یہ پاکستان نہیں ہے، اگر وہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کر دیتا تو تم گرفتار ہو سکتی تھی۔ مگر اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ میں پولیس والوں کو بتا سکتی تھی کہ اس نے مجھے تنگ کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود تھا یا تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا؟ نہیں، اس کے پاس اتنے سارے لوگ تھے جن کے سامنے تم نے اسے مارا۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ تم مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں اپنی عزت کی اتنی ہی پرواہ ہے تو تمہیں یہاں پر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں تمہیں پہلے اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ کبھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی کرو گی اس کی ذمہ دار صرف تم خود ہوگی۔ میرا کام تمہیں یہاں پر لانا تھا۔ اپنی یونیورسٹی کے معاملات سے لے کر اپنی گریجویشن کی ڈگری تک سب کچھ تم نے خود ہی سنبھالنا ہے۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری اور اہم بات، خبردار جو تم نے میرے گھر والوں کو میرے خلاف شکایت لگائی، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جاتے جاتے وہ اسے دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ اسے یکدم ہی اس ملک سے نفرت ہونے لگی تھی جہاں پر آنے کے لیے وہ کسی وقت میں حد سے زیادہ پرجوش تھی۔ اسے تو اچھا تھا وہ پاکستان میں ہی رہ جاتی، اس نے روتے ہوئے سوچا۔ کب وہ سوئی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ صبح جا کر اس نے اپنی یونیورسٹی میں کچھ ضروری کاغذات بھی جمع کروانے تھے۔ تقریباً 3 بجے کے وقت وہ فارغ ہوئی اور یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ یونیورسٹی اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑی اور خوبصورت تھی۔ باہر کا موسم تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ بھی انہی پھولوں کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ لوگ آتے جاتے اسے دیکھ رہے تھے، مگر وہ ان سب سے مکمل طور پر بے نیاز ان خوبصورت مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ دیکھا تو یہی انسان تھا جس پر اس نے کل رات ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا، جبکہ وہ بہت ہی مطمئن انداز میں اس ڈرپوک لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ ہیلو، مائی نیم از جیک۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ مزید ڈر گئی۔ اوہ سوری، آئی فارگاٹ۔
यू आर मुस्लिम गर्ल, उसने ब्रिटिश लहजे में जवाब दिया। वो इससे छोटे छोटे सवाल कर रहा था, जबकि वो खामोशी से उसके चेहरे को देख रही थी। शायद वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस इंसान के दिल में क्या है और अब ये उससे क्या चाहता है। क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? जब उसने ये सवाल किया तो वो तेज़ी से उठी और भाग गई। जैक उसे भागता हुआ देख रहा था। ये बात तो पक्की थी कि उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन क्यों? उस रात वो एक बार फिर से अपने माजी के बारे में सोचती रही। बाबा जान, मैं उससे किसी सूरत निकाह नहीं करूंगा, उसने हलक के बल चिल्लाते हुए कहा। फारूक ने गुस्से भरी एक नज़र नसीर पर डाली। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। कल तुम मेरे साथ गांव चल रहे हो। मैं अपनी भांजी को इन हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्होंने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया। आपको अपनी भांजी की तो फिक्र है, लेकिन मेरी जरा परवाह नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और अब तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है। फिलहाल तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यह सब कुछ कितना ज़रूरी था। उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। वो तेज़ी से पीछे की तरफ हटा। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं कागजात में भी ये बात लिखवा दूंगा कि मेरी सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और वो है ज़ैनब। उन्होंने अपनी भांजी का नाम लिया। नसीर के दिल में एक बार फिर से नए सिरे से नफरत पैदा हो गई। आप मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई। मैं तुम्हारा बाप हूं और कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, खामोशी से ये निकाह करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना जो कुछ मैं करूंगा वो तुम्हें हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। वो गुस्से से वहां से निकला ही था कि फारूक साहब की आवाज़ सुनकर उसके कदम ज़मीन में ही जम गए। गाड़ी की चाबी यहीं छोड़कर जाना, क्योंकि अब तुम इस वक्त मेरी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम इस शादी के लिए राज़ी हो जाओगे। उससे पहले तुम्हें कोई चीज़ इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं। नसीर को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि ये सारी बातें करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है, जो किसी ज़माने में उस पर अपनी जान निछावर करने को तैयार था, और आज वो एक पराई लड़की के लिए अपने बेटे को घर से निकालने की धमकियां दे रहे थे। ये बात उसके लिए बहुत तकलीफदेह थी, जिसे हजम करना काफ़ी मुश्किल था। उसने घर से निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया, क्योंकि उसकी आदत थी वो गाड़ी लिए बगैर घर से बाहर नहीं जाता था। उसने ऐशो इशरत वाले माहौल में आंख खोली थी। बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। वो लाड और प्यार में पला बढ़ा था। एकदम से ये सारी चीज़ें छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। तो क्या उसके लिए बाबा ने मुझे वापस पाकिस्तान बुलाया था? उसका सर एक बार फिर से शदीद दर्द करने लगा। इससे तो अच्छा था मैं कभी पाकिस्तान वापस आता ही नहीं। इस बार पाकिस्तान आना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और जिसकी सज़ा वो सारी ज़िंदगी भुगतने वाला था। उसे वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी जब रशीदा बेगम दस्तक देते कमरे के अंदर दाखिल हुई। माँ को देखकर वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। अम्मी, आपको अंदाज़ा भी है कि बाबा मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं? आप उन्हें समझाती क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे बाबा को हर तरह से समझा कर देख लिया है, मगर उसके सर पर तो हमदर्दी का भूत चढ़ा हुआ है, और ये भूत उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक वो उस मनहूस औरत को बहू बनाकर इस घर में नहीं ले आता। अम्मी, उसका मंगेतर मर गया है, अब इसमें मेरा क्या कसूर? बेटा, कसूर उस किसी का भी नहीं, कसूर उसके काले नसीबों का है। मुझे तो डर है उसके नसीबों का साया तुम पर भी ना पड़ जाए। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का चेहरा हाथों के प्याले में पकड़ा और उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा, तुम्हारे पास अपने बाबा की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उस लड़की को ज़्यादा अरसे तक इस घर में नहीं टिकने दूंगी।
बहुत जल्द उसे इतना तंग करूंगी कि वो खुद तुम्हारी जिंदगी से निकलने पर मजबूर हो जाएगी। वो खुद ही तुमसे तलाक का मुतालबा करेगी। क्या ऐसा हो सकता है? नसीर की आंखें यकदम खुशी से चमकने लगी। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर यकीन रखना है और मेरा साथ देना है। अम्मी, आपके ऊपर भरोसा है, इसीलिए मैं उस लड़की से निकाह करने को तैयार हूं। आपने ही उससे मेरी जान छुड़वानी है। रशीदा बेगम ने उसे एक बार फिर से वादा किया। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। फारूक साहब इस वक्त अपनी स्टडी में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर सोच विचार के तासुरात थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो किसी गहरी फिक्र में डूबे हुए हों। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने निगाहें उठाकर एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर अंदर आने की इजाज़त दे दी। उनका बेटा अपने चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट सजाए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अब वो पहले की तरह झुंझुलाया हुआ मालूम नहीं हो रहा था और ना ही उसके चेहरे पर किसी किस्म की कोई बेचैनी थी। वो काफ़ी पुरसकून नजर आ रहा था। क्या हुआ, अपनी माँ से डील करके आ गए? उनके सवाल पर एक लम्हे के लिए तो वो बौखला गया और फिर अनजान बनते हुए पूछने लगा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बेटा, मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। खैर चलो, इन बातों का वक्त नहीं है। मैं तुमसे निकाह की बात करता हूँ। क्या तुमने अपने आप को तैयार कर लिया? नसीर ने तेजी से हाँ में गर्दन हिला दी। मगर मेरी एक शर्त है। वो कुछ कहने ही लगा था कि फारूक साहब ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं तुम्हारी सारी शर्तों से वाकिफ हूँ और तुम्हारी कोई भी शर्त नहीं मानूंगा। बाबा जान, ये क्या बात हुई? मैं आपके कहने पर उस लड़की से निकाह कर तो रहा हूँ, आपको और क्या चाहिए? वो बुरी तरह से झुंझला गया। तो बस फिर अपनी कोई शर्त ना रखो, खामोशी से ये निकाह कर लो। ना चाहते हुए भी वो खामोश हो गया और ख़ुद को तसल्ली दे दी कि निकाह करके वो उसे इस घर में तो ले आएगा, लेकिन कभी उसे अपने साथ लेकर लंदन नहीं जाएगा, बल्कि वो उसे अपनी माँ के रहमो करम पर छोड़ेगा। और फिर कुछ अरसे बाद उसकी माँ उसे तकलीफ़ें पहुँचाकर इस घर से भागने पर मजबूर कर देंगी। दोनों माँ बेटे ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि एक प्लानिंग इंसान करता है और दूसरी प्लानिंग उसका खुदा करता है, और हमेशा वही प्लानिंग कामयाब होती है जो खुदा ने की होती है। वो इस वक्त एक छोटे से मकान के कच्चे से सहन में बैठा था। पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। आसपास बहुत से और भी लोग मौजूद थे। उनमें ज़्यादातर तो इसी गांव के रहने वाले थे। इस कदर शदीद गर्मी में भी उन्होंने चमकीले भड़कीले लिबास पहने हुए थे। इसे उन लोगों की जहालत पर गुस्सा भी आ रहा था। बाबा, मौलवी कब आएगा? उसने एक नज़र अपने बाप की तरफ देखा और फिर से वही सवाल किया जो वो 5 बार पूछ चुका था। क्या हो गया है तुम्हें? बस थोड़ी देर में आने वाला है। और तुमने अपनी ये क्या शक्ल बनाई हुई है? जल्दी से अपने चेहरे के तासुरात ठीक करो। लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। लोग वही समझेंगे जो मेरे दिल में चल रहा है, और इसमें कुछ गलत तो नहीं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। फारूक साहब के घूरने पर उसने अपने लबों पर मुस्कुराहट सजा ली थी, मगर ये बात वो खुद ही जानता था कि उसका दिल कितना तकलीफ में है। उसी वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। उसने देखा सना की तरफ से कॉल आ रही थी। उसके हाथ पांव फूल गए थे। ये वही लड़की थी जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसको पाने के लिए वो हर हद से गुजर सकता था। बाबा, मैं ये कॉल सुनकर आता हूँ। वो वहाँ से उठने ही लगा था कि उसी वक्त मौलवी आ गया। फारूक साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर बिठा दिया। आज तुम्हारे निकाह का दिन है। आज तो ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और थोड़े से समझदार हो जाओ। मौलवी साहब आ गए हैं, बस अब निकाह शुरू होने वाला है। मगर बाबा, एक बहुत ज़रूरी कॉल है। अगर मैंने ये कॉल अटेंड ना की तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। उसने 2 टोक अंदाज में बात ख़त्म की और उठकर चला गया। सना से तकरीबन 15 मिनट तक बात करने के बाद वो एक बार फिर से उन लोगों के दरमियान आकर बैठ गया। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। इस बार फारूक साहब के कहने पर वो मुस्कुराया नहीं था। दूसरी तरफ ज़ैनब को अभी बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया।
वो आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। वो एक ही नज़र में किसी को अपना दीवाना कर देने की सलाहियत रखती थी। वो अपनी इस खूबी से भी वाकिफ थी, मगर कभी उसने अपनी इस खूबी का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो हमेशा हलाल को पसंद करती थी और हलाल के इंतज़ार में ही वो सब्र कर रही थी। ये जलील औरत मेरे बच्चे को तो खा ही गई, अब ये तुम्हारे बच्चे को भी खा जाएगी, उसकी चची ने रशीदा बेगम की आंखों में देखते हुए कहा। होश में तो हो, ये क्या फजूल बोल रही हो? वो हत्थे से ही उखड़ गई। शोर की आवाज़ सुनकर फारूक साहब तेज़ी से उस जानिब गए और मामले को किसी हद तक ठंडा किया, वरना वो दोनों औरतें जख्मी शेरनियाँ बनी हुई थी और किसी भी वक्त एक दूसरे पर झपट सकती थी। पूरा रास्ता खामोशी में ही कटा था। उसने एक बार भी नज़र उठाकर अपनी दुल्हन की तरफ नहीं देखा। हालांकि उसके चेहरे के ऊपर से घूंघट हटा हुआ था, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और उसे दमे का भी मसला था। थोड़े से तंग माहौल में उसकी सांसें बुरी तरह घुटने लगती थीं और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। उसकी बीमारी के बारे में भी किसी को मालूम नहीं था। रात 2 बजे के वक्त वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अपने सब दोस्तों के उठ जाने के बाद अब वो अपनी बीवी के पास आ रहा था। फारूक साहब, जो कि उसके कमरे के बाहर ही बेचैनी से टहल रहे थे, उसे इतना लेट वहां पर आता देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि 12 से पहले घर वापस आ जाना। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे तन्हाई से खौफ भी आता है। क्या हो गया है अब्बा जान? अपने दोस्तों के साथ था, कौन सा किसी दूसरी औरत के पास था? उसने अजीब से अंदाज में कहा। जिस तरह के तुम्हारे हालात हैं, मुझे तो तुमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए। बस बहुत हो गया डैड, आपके कहने पर मैंने आपकी बात मान ली। मुझसे मज़ीद किसी और चीज़ की तवक्को ना करें। देखो, अगर तुम्हारी वजह से इस लड़की की आंखों में आंसू आए तो मैं अपने फैसले पर डट जाऊंगा और उसी वक्त तुम्हें अपनी जायदाद से निकालकर बाहर फेंकूंगा। बाबा जान, आप देखें, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ उससे निकाह करूं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे दरमियान इसके अलावा और कोई डील नहीं हुई थी। तुम पागल तो नहीं हो गए या तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? मैंने उसकी शादी तुमसे की है, उसे तुम्हारी जिम्मेदारी में दिया है, और तुम इतने मजबूत और इतने पाकीज़ा रिश्ते को एक डील से तशबीह दे रहे हो। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। उसे डर था कि उसके बाप की तबीयत ही ना खराब हो जाए, इसीलिए वो उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा और उनसे वादा किया कि वो इस लड़की का बहुत ख्याल रखेगा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड से टेक लगा कर लेटी हुई थी। उसके छोटे छोटे खराटों की आवाज़ इस वक्त कमरे में गूंज रही थी। उसने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। वॉशरूम में जाकर पानी की एक छोटी सी बाल्टी भरी और वो पूरी बाल्टी उस मासूम सी लड़की पर उंडेल दी। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठी और चिल्लाने लगी, सैलाब आ गया, सैलाब आ गया। उसने जल्दी से इस लड़की के मुंह पर हाथ रखा। पागल तो नहीं हो गई? ये क्या बोल रही हो? उसने जब नसीर को अपने करीब देखा तो उसका दिल एक अजीब से अंदाज में धड़का। इस इंसान के बारे में उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और ना ही उसके वहमो गुमान में था कि वो इसकी बीवी बन जाएगी। किस्मत भी अजीब अजीब रंग दिखाती है और बाज़ औक़ात इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर वो हद से ज़्यादा बेबस हो जाता है। अब टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से उठो यहाँ से, तुम्हारी वजह से सारा फोम भी भीग गया। ज़ैनब ने बेयकीनी से अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे उसे पूछना चाहा हो कि वो इसी के बारे में बात कर रहा है। एक तो उस इंसान ने बदतमीज़ी की हदें क्रॉस कर दी थी और दूसरा वो उसी पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था। चलो जल्दी से यहाँ से उठो। वो एक लम्हे की देरी किए बगैर बेड के करीब जाकर खड़ी हो गई, जबकि वो दूसरी साइड पर जाकर लेट गया जो कि सूखी हुई थी। उसे वहाँ पर लेटता देखकर वो थोड़ी सी हैरान हुई, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया। बस वो उसी को देखे चली जा रही थी। जब उसके खराटों की आवाज़ कमरे में गूंजी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेइज्जती का एहसास होने लगा। नसीर उसे फालतू चीज़ की तरह उठाकर साइड पर फेंक चुका था और ख़ुद अब पुरसकून नींद सो रहा था। ये बात उस पर किसी तौर पर हज़म नहीं हो रही थी।
उसके दिल में न जाने क्या आया, उसने नसीर का कंधा हिलाया जो कच्ची नींद में था। वो गुस्से से अपनी जगह पर उठा। ये क्या तरीका है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी की नींद इस तरह से ख़राब नहीं करते? पिछली 2 रातों से मैं सो नहीं पाया, शदीद तबीयत ख़राब है मेरी। उसने ज़ैनब के सामने हाथ जोड़े। मैंने तुमसे निकाह कर लिया है, तुम इसे मेरा बहुत बड़ा एहसान समझो। मेरे सर पर नाचने की कोशिश मत करो। मुझे इस तरह की औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा और तुम्हारा ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मैं तुम्हें वो हकूक़ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ जिससे बहुत जल्द मैं शादी कर लूँगा। तुमसे निकाह सिर्फ़ और सिर्फ मैंने डैड के कहने पर किया था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। अगर वो मुझे मजबूर ना करते तो मैं तुम्हारी जैसी की लड़की की तरफ नज़र भी उठाकर देखने के पसंद न करता। ये बातें किसी हथौड़े की तरह उसके जहन पर बरस रही थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है और मेरे फैसले के मुताबिक ही चलेगी। चलो खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर वो फिर से लेट गया। जब उसे ज़ैनब की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, मगर मैं कहाँ पर सोऊंगी? यहाँ पर तो कोई और जगह नहीं है। नसीर के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। उसे एक और मौका मिल गया था जिससे वो इस लड़की को जलील कर सकता था। यही सोचकर तो उसने अपने रूम में बेड के अलावा दूसरा कोई फर्नीचर नहीं रखवाया था, क्योंकि वो जानता था बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा जब वो इस लड़की को जलील करेगा। ये देखो, ज़मीन पर बिछा हुआ कारपेट तो तुम्हें नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पर अपना तकिया रखो और सो जाओ। वो तकिया भी गीला था और कारपेट भी काफ़ी ठंडा था, मगर उसके बावजूद वो खामोशी से नीचे लेट गई। उसने अभी तक दुल्हनों वाला लिबास पहना हुआ था। वो इस वक्त इसी पोजीशन में लेटी हुई थी कि नसीर को उसका चेहरा बखूबी दिखाई दे रहा था। जब भी उसकी आंख खुलती, सामने वो हसीन चेहरा मौजूद होता। तुम किसी और जगह पर जाकर नहीं लेट सकती? उसने कोफ्त से कहा तो वो बगैर चूं चरा किए दूसरे कोने में जाकर लेट गई। नसीर को हैरानगी हो रही थी। वो कब से इसको जलील कर रहा था और उसको उसकी अपनी ही नज़रों में गिरा रहा था, मगर मजाल है जो उस लड़की ने पलट कर इसे जवाब दिया हो। शायद ये इस वजह से था कि वो खुद भी मजबूर थी। शायद उसे ये डर था कि अगर उसने नसीर से बदतमीज़ी की तो वो उसे छोड़ देगा। उसके बाद वो काफ़ी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, मगर नींद उड़ चुकी थी। उसकी नज़र जब ज़मीन पर पड़ी तो देखा वो लड़की एक बार फिर खराटे ले रही थी। उसे अब गुस्सा आने लगा। वो इस कदर नरम गरम बिस्तर पर भी सो नहीं पा रहा था और वो इस कदर ठंडे कारपेट पर चैन की नींद सो रही थी। जलन के मारे उसका बुरा हाल था। वो एक बार फिर से उसके सर पर पहुंच गया, उसके बाजू को पकड़कर झटका देते उठाया। इससे पहले कि वो दोबारा से चिल्लाने लगती, नसीर ने उसके लबों पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ को गले में ही दबा दिया। ना तो जलजला आया है और ना ही सैलाब। मैं नसीर हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। उसकी आंखें कच्ची नींद से उठाए जाने की वजह से लाल हो रही थी और हद से ज़्यादा नशीली भी। नसीर को महसूस हुआ था अगर वो थोड़ी देर तक इन आंखों में देखता रहा तो डूब जाएगा और शायद वो बहक भी जाता। ये गलती वो किसी सूरत नहीं कर सकता था। तुमसे मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम हमारे आपस के ताल्लुकात के बारे में डैड को नहीं बताओगी। अगर तुमने बताया तो मैं उसी दिन तुम्हें तलाक दे दूंगा। जी ठीक है, मैं समझ गई। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उसने ये कहकर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। नसीर ने उसके बाजू को पकड़कर एक बार फिर से झंझोड़ा। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर मामा भी तुमसे पूछें कि तुम लोगों के दरमियान सब कैसा चल रहा है तो तुम उन्हें भी तसल्ली दोगी। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। और हाँ, वैसे भी ये सब कुछ सिर्फ कुछ हफ्तों तक चलेगा। उसके बाद मैं अपने मुल्क वापस चला जाऊंगा। ये कहकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से सना का चेहरा घूमने लगा था, जो लंदन में बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। जाओ, तुम बेड पर जाकर सो जाओ। उसके नज़रें करम करने पर वो एकदम ही घबरा गई। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। उसकी नज़रें फ़िलहाल बेड की उस छोटी सी साइड पर टिकी हुई थी
जो पानी के असरात से पाक थी। वो उसकी नज़रों के मफहूम को समझ चुका था, इसलिए उसका मजाक बनाते बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अभी मेरा टेस्ट इतना गंदा भी नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ तवज्जो दूँ या तुम पर नजर करम करूँ। मेरी जब एक बार नींद खराब हो जाए तो दोबारा मुझे नींद नहीं आती। अब मैंने सारी रात जाग कर ही गुजारनी है। सोच रहा हूँ कोई किताब पढ़ लूँ, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम्हें भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपने बिस्तर पर लिटा रहा हूँ, ताकि अगर घर का कोई फर्द कमरे में आ जाए तो वो मुझे गालियाँ ना दे। जाते जाते वो उसे एक और हिदायत करना नहीं भूला था कि वो सोने से पहले अपना लिबास चेंज कर ले। खुदा का शुक्र था कि फारूक साहब रात के इस पहर लाउंज में नहीं थे। वो अपने कमरे में मीठी नींद सो रहे थे। उन्हें लग रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी भांजी अपने हुस्न और अपनी समझदारी से उनके बेटे को अपने कंट्रोल में करने में कामयाब हो जाएगी। और अगर उन्हें ये पता होता कि उनकी भांजी यूं हथियार डाल देगी तो शायद वो खुद ही कुछ कर लेते, जिससे उन दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो जाते। नसीर ने 2 हफ्तों के बाद लंदन वापस चले जाना था, इसीलिए उसने अभी से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। दरअसल वहाँ पर उसके दोस्त मौजूद थे जिन्होंने उसे कुछ चीज़ें लाजमी लाने को कहा था। वो उन्हीं दिनों इन कामों में मसरूफ़ था और नहीं जानता था कि उसका बाप एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा हुआ है। अगर उसे इस प्लानिंग के बारे में पता चल जाता तो वो शॉपिंग किए बगैर ही पाकिस्तान से भागने के बारे में सोचता। तकरीबन शाम 6 बजे का वक्त था जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ। पूरा दिन घूमने की वजह से उसे शदीद थकावट हो रही थी। वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता था। अचानक उसकी नज़र ओपन किचन में काम करती अपनी ज़ौजा पर पड़ी, जो हमेशा की तरह काले रंग के लिबास में मलबूस थी, मगर डिज़ाइन मुख्तलिफ था। उसे काला रंग बहुत पसंद था। वो ज़्यादातर कपड़े इसी रंग के खरीदती थी। बेटा, मैंने तुम दोनों की टिकट करवा दी है। कल ही तुम लोग वापस लंदन जा रहे हो। फारूक साहब ने उसके पहलू में बैठते हशाश बशाश लहजे में कहा, जबकि उसे अपने दिल की धड़कन रुकती हुई मालूम हुई। हम दोनों से उनकी क्या मुराद? उसने बेसाख्ता सोचा, और जब अपने बाबा से सवाल किया तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, जाहिर सी बात है, तुम्हारी और ज़ैनब की टिकट कराऊंगा। मैं तुम लोगों के अलावा और कौन जा रहा है? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अकेला लंदन वापस जाऊंगा। मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वो तो जैसे हत्थे से ही उखड़ गया था। तुम दोनों की टिकट हो चुकी है और वो तुम्हारे साथ जा रही है। ये मेरा अटल फैसला है, उन्होंने अब के बार सपाट लहजे में जवाब दिया। वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। कमरे में जाकर अपना वो गुस्सा अपनी बीवी पर निकालने वाला था। जब वो वहाँ से उठा तो फारूक साहब ने उसे खबरदार किया कि उस लड़की को कुछ भी मत कहना, उसका कोई कसूर नहीं। ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है। मैं जब तुम लोगों का निकाह कर रहा था उसी वक्त मैंने दिल ही दिल में खुद से अहद किया था कि तुम दोनों को एक साथ लंदन भेजूंगा। इस तरह से तुम भी औकात में रहोगे और दूसरी औरतों की तरफ तवज्जो नहीं दोगे। दूसरी तरफ वो भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी। बाप की बात सुनकर उसे एक बार फिर से गुस्सा आ गया। बाबा, वो लड़की मुझे मैट्रिक पास भी नहीं लगती। बेटा, ये तो आपकी गलती है कि कभी आपने अपनी कज़न के बारे में जानना ही पसंद नहीं किया। वो लड़की FSC की टॉपर है और अब हमें उसका दाखिला BS मीडिया में करवाना है। मुझे यकीन है कि वो बहुत जल्द इस फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी और मेरा नाम फ़ख्र से बुलंद कर देगी। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो पैकिंग कर रही थी। उसने अपने बैग में पड़े हुए सारे कपड़े ज़ोर से ज़मीन पर फेंके और उन कपड़ों को फैलाने लगा। वो अपने शूज़ ज़ोर ज़ोर से उन कीमती कपड़ों पर मार रहा था जो चंद दिन पहले ही उसके मामू ने उसे ख़रीद कर दिए थे। मैं हैरान हो रहा था कि शॉपिंग मॉल के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा इरादा मेरे प्लान्स पर पानी फेरने का था। देखो, मेरी बात सुनो। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं समझता और ना ही कभी मैं तुम्हें वो इज्जत दे पाऊंगा जिसकी तुम मुस्तहिक हो। बेहतर यही है अभी अपने मामू को इनकार कर दो
اور انہیں کہہ دو کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر زینب نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ مگر میں ایسا نہیں کہوں گی، میں واقعی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ مجھے لندن کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا بہت شوق تھا اور اب میرا شوق پورا ہو رہا ہے۔ جانتی ہو نا، مجھے یہ جو تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے بھی میرے ابا کا ہی ہاتھ ہے۔ تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، میرے ساتھ جانے سے منع کر دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ وہاں جا کر میں تمہاری کسی قسم کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ ایک بار پھر سے جھٹکتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ زینب وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اب کسی کے مطابق بھی اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ اب اس کے دل میں جو کچھ بھی آئے گا وہ کرے گی۔ اگر وہ یہاں پر رہ جاتی تو اس کی ممانی جان اسے دوسری سانس لینے کی اجازت نہ دیتی۔ اس بار اس نے اپنی خوشیوں کو چنا تھا اور اس کے ساتھ جانے پر بضد رہی تھی۔ جہاز میں ان دونوں کی سیٹ بھی الگ الگ تھی۔ یہ دیکھ کر نصیر نے ایک گہری سانس لی اور پرسکون انداز میں پہلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اس مخالف سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک پکی عمر کا شخص آ کر بیٹھا، جسے دیکھ کر وہ تھوڑی سی ہچکچا گئی، مگر پھر دوبارہ سے اپنے ناول کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نصیر کے پہلو میں بھی ایک بہت حسین لڑکی بیٹھی تھی، مگر وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا دھیان بار بار اپنی بیگم کی طرف جا رہا تھا۔ کیا وہ آپ کا کچھ لگتا ہے؟ اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے پکی عمر کے شخص نے زینب سے سوال کیا تو اس نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ نصیر جلدی سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا اور خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اتنا زیادہ فکر مند ہونے کی۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، بڑی ہے، وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ جی وہ میرے شوہر ہیں، زینب نے نگاہیں جھکاتے کہا۔ تو پھر تم ان کے ساتھ جا کر کیوں نہیں بیٹھی؟ اویس صاحب نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، مگر وہ مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتے اور نہ ہی مجھے بیوی کا درجہ دینے کو تیار ہیں۔ یہ شادی انہوں نے اپنے باپ کے دباؤ میں آ کر کی تھی۔ تو پھر تم اس انسان کے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ تم اس سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اس طرح تو وہ تمہیں ذہنی تکلیف دیتا رہے گا۔ کیا تم یہ سب کچھ برداشت کرتی رہو گی؟ اویس صاحب کو یکدم اس کی بہت فکر ہونے لگی تھی۔ انہیں اس معصوم سی لڑکی پر حد سے زیادہ ترس آ رہا تھا۔ وہ یوں ہر کسی کے لیے فکر مند نہیں ہوتے تھے، مگر اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جو انہیں بار بار اس لڑکی کی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تم یقیناً لندن میں بھی اس کی مرضی کے خلاف جا رہی ہو۔ ان کے سوال پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ آدمی تمہیں برباد کر دے گا، میری بات لکھ کر لے لو۔ تم اپنے سارے کاغذات کبھی بھی اس کے حوالے نہ کرنا، اور نہ ہی تمہیں اس پر اندھا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹا، انہوں نے فوراً اسے مدد کی پیشکش کی تھی۔ اس نے بہت خوبصورتی سے انہیں انکار کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں گی۔ اس نے رسانیت سے جواب دیا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر امتحان میں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ انہیں اس لڑکی میں اپنی بیٹی نظر آ رہی تھی، جس کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، مگر وہ آج تک ان کے دل میں ویسے ہی زندہ تھی۔ تھوڑی سی دیر گزری۔ یہ تم میرا کارڈ رکھ لو، جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئے تو تم مجھ سے رابطہ کر لینا۔ رکو، میں تمہیں اپنا ایڈریس بھی لکھ دیتا ہوں۔ میرا لندن میں ایک بہت بڑا کاروبار ہے جسے میں اور میرا بیٹا سنبھال رہے ہیں۔ میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے جیسے اسے تسلی دی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس انسان کی مدد طلب نہیں کرے گی۔ وہ تو اس بات پر بھی حیران ہو رہی تھی کہ آخر کوئی کسی کے ساتھ اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اس کے اپنے تھے جن کے ساتھ اس کا خونی رشتہ تھا، مگر وہ لوگ اسے ہر تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ کارڈ تھام لیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے بارے میں سوچا۔
उसके बाद वो उनके साथ बैठी छोटी छोटी बातें करती रही। उसने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा था। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। अब वो अपनी पढ़ाई में और घर के कामों में इस हालत तक मसरूफ हो गई कि उसे किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। यूनिवर्सिटी से वापस आती थी तो खाना बनाना शुरू कर देती, क्योंकि नसीर साहब उसके हाथ का खाना बहुत पसंद करते थे। वो उसके हाथ के खाने में कीड़े भी निकालता, उसे डांटता भी, मगर उसके बावजूद भी वही खाना खाता। उसे भी अब इन सारी चीज़ों की आदत हो गई थी। नसीर साहब की अपनी एक दुनिया थी जिसमें वो बहुत खुश थे और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार भी इस लड़की की तरफ देखना पसंद नहीं किया। दरअसल वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था और जिससे शादी करना चाहता था, इन दिनों वो उसी के घर में रह रही थी। यही वजह थी कि वो यूनिवर्सिटी से फ़ौरन आते ही अपने कमरे में चली जाती। काफ़ी दिनों से उसने नोट किया कि वो लड़की दोबारा से इस घर में नहीं आई, और फिर उसे पता चला कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। नसीर ने उस लड़की को किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। न जाने क्यों ये बात उसे बहुत खुशी दिला रही थी। उस दिन उसके लबों से मुस्कुराहट दूर हो ही नहीं रही थी। तुम क्यों इतना खुश हो? लगता है दो जहान के खजाने मिल गए हैं। नसीर ने नॉर्मल से अंदाज में उससे सवाल किया। उसे तो दुखी होना चाहिए था क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था, मगर वो बहुत मुतमईन घूम रहा था। मैं खुश तो नहीं हूं, ये कहकर वो फौरन से आलू काटने लगी। मुझे पता है तुमने जैक के साथ होने वाली मेरी गुफ्तगू सुन ली है, और तुम्हें यह भी पता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। तुम इसीलिए खुश हो रही हो कि तुम्हारा शौहर एक बार फिर से सिंगल हो गया है। वो आज हल्के फुल्के अंदाज में उससे बात कर रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे वाकई आपके लिए दुख है। मगर मुझे दुख नहीं, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस लड़की की असलियत मेरे सामने आ गई, और जब मेरे पास इतनी पाक और नेक बीवी मौजूद है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और के जाने पर गम मनाने की। उसने फौरन से अपनी पार्टी तब्दील कर दी थी। ज़ैनब का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसके दिल में खुशफहमी फिर से जन्म लेने लगी थी, मगर इस बार उसने उस खुशफहमी को कुचल कर बिठा दिया, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देगी और किसी बड़े मुकाम पर पहुंचेगी। उसके मामू हर महीने उसके लिए एक मोटी रकम भेज देते थे। पैसों की तरफ से उसे कोई मसला नहीं था। अब तो नसीर खुद भी उसे वक्फे वक्फे से पैसे देने लगा था। वो उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखने लगा था। अक्सर जब अपने लिए शॉपिंग करने जाता तो उसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ लेकर आ जाता। अब वो उसके खाने में भी नुक्स नहीं निकालता था, बल्कि उसकी तारीफ़ करता था। वो उसे अपने साथ घुमाने के लिए भी लेकर जाता। एक दिन वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे जब ज़ैनब उससे पूछे बगैर न रह सकी, आप मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी कदर हो गई है। देखो, मुझे पहले लगता था कि नाम और मर्तबे वाली औरत से हर मर्द को शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है कि औरत इज़्ज़तदार होनी चाहिए, और तुम इज़्ज़तदार भी खूबसूरत भी हो। जहाँ तक तुम्हारे मर्तबे का सवाल है तो कोई बात नहीं, औरत की पहचान उसके शौहर की वजह से होती है, और मैं खुद पर यकीन रखता हूँ कि 2 ही सालों में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत सी तकालीफ दी हैं, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जहर भरा हुआ है, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि ये जहर अपने दिल से निकाल दो, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। वो खामोशी से सर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। अपनी बात कहकर वो खामोश हो गया। उसके साथ ही उसने वेटर को बुलाकर मीठा ऑर्डर किया। वो भी उस पर भरोसा करने लगी थी, उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। दोनों अब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। नसीर उससे बेतहाशा प्यार करने लगा था, क्योंकि वो वैसी लड़की थी जैसी नसीर को चाहिए थी। दूसरी तरफ जैक भी अचानक से उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी लेने लगा था।
यूनिवर्सिटी में वो जहाँ कहीं भी जाती, जैक वहीं पर ही मौजूद होता। एक दिन वो अपने क्लास फेलो के साथ खड़ी बातें कर रही थी जब वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो उसे लेकर साइड पर गया था। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? मैं तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता हूँ। माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसने जल्दी से इनकार कर दिया। यार देखो, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हम अच्छे दोस्त भी हैं। मगर मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, वो सख्ती से बोली। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिला रही, मैं तो बस तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में तो यही होता है ना कि हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक है और कोई इंसान किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारने दो और मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब दोबारा कभी इस तरह मेरा रास्ता रोकने की या फिर मुझे मुखातिब करने की कोशिश मत करना, वरना स्टूडेंट डिपार्टमेंट में तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। बोंगली उठाकर उसे धमकी देती वहाँ से जा चुकी थी। इन दिनों नसीर भी हैरान था क्योंकि जैक उससे हमेशा ज़ैनब के बारे में सवाल करता रहता। उसकी बातें ज़ैनब से शुरू होकर ज़ैनब पर ही ख़त्म होती थी। नसीर को भी शक होने लगा था कि जैक उसकी बीवी में दिलचस्पी लेने लगा है। और फिर जब उसने यूनिवर्सिटी में उन दोनों को एक साथ खड़े देखा तो उसे मज़ीद गुस्सा आया। जब शाम के वक्त वो घर वापस आया, सामने का मंजर देखा तो उसे लगा उसने कुछ गलत देख लिया है। जैक के हाथों में उसकी बीवी की चादर थी और वो इस वक्त सोफे पर गिरी हुई थी। नसीर, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ, हम दोनों मसरूफ़ हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने की थी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। देखो नसीर, ये झूठ है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, उसने कहा, मगर नसीर ने उसकी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर घटिया हरकत कर सकती हो, वो हलक के बल चिल्लाया। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें मासूम समझा। वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था, इस बात को नज़रअंदाज किए कि वो इस वक्त बग़ैर चादर के थी और बेपर्दा थी। ज़ैनब की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था उसका शौहर उस पर शक करेगा। वो नसीर से मुकम्मल तौर पर अलग हो गई, यहाँ तक कि उसने अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया। अब वो एक ब्रिटिश लड़की के साथ कमरा शेयर कर रही थी। उसने घर में भी इस बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही नसीर ने किसी से इस बारे में बात की थी। रात गए जब नसीर का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसे एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मगर फिर जैक का सोचते ही एक बार फिर से उसका दिमाग घूम गया। यूनिवर्सिटी में कई बार उन दोनों का आमना सामना होता था, मगर वो उसकी तरफ नज़र उठाकर भी देखना पसंद नहीं करती थी और ये देखकर नसीर जलता कोड़ता। कुछ ही दिनों के बाद उसके दरवाजे पर खुला का नोटिस आया जिसने उसे गुस्से से फाड़ दिया। फारूक साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो उनसे मिलने पाकिस्तान आया। नसीर ने अपनी माँ से बात की और उसे पाकिस्तान में ही रोक लिया। जय काफ़ी दिनों से परेशान घूम रहा था। वो लड़की बार बार उसके ख्वाबों में आ रही थी। उसे लग रहा था उसने इस लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। एक दिन वो नसीर के पास उसके अपार्टमेंट में गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें देखकर लगता था जैसे कई दिनों से सोया नहीं है। उसे अभी भी पता नहीं था कि वो नसीर की बीवी थी, ना ही नसीर ने उसे बताया था। जब उसने उसे ये कहा कि उस दिन उसने उसकी कज़न के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उस दिन के बाद से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो नसीर को लगा सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हों। जैक के जाने के बाद उसने जल्दी से अपने टिकट बुक करवाई। वो अगली ही फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंचना चाहता था, जहां से उसकी माँ उसकी बीवी के ख़िलाफ़ बुरी बुरी खबरें भेजती रहती और उसके किरदार पर इल्ज़ाम भी लगाती। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो घर से भाग चुकी है। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो हद से ज़्यादा परेशान था जब नौकरानी किचन के अंदर दाखिल हुई। दरअसल वो वहाँ पर पिछले 12 सालों से काम कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे।
زینب بچی کو بچا لو، تمہاری ماں نے اسے امیر آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور اس کے باوجود تمہاری ماں نے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ وہاں سے نکلا اور اس آدمی کے گھر پہنچا۔ اس آدمی کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا۔ اگر زینب بیچ میں نہ آتی تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ اس کے بعد وہ زینب کو گلے لگا کر کافی دیر کھڑا رہا اور روتا رہا۔ وہ اسے معافیاں مانگ رہا تھا، وہ اس کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار تھا، جبکہ زینب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دن کے بعد زینب نے بولنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہ بولی تھی، اور اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور نصیر سے شکایتیں کر رہی تھی، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ نصیر نے اس کی مار بھی برداشت کی تھی اور اس کی شکایتیں بھی سنی تھی۔ ایک بار پھر سے اس سے معافی مانگی تھی۔ نصیر کی ماں نے بھی زینب کے پاؤں میں گر کر اسے معافی مانگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نصیر کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ قربانی اس نے اپنی محبت کی خاطر دی تھی۔ وہ زندگی کی طرف ایک بار پھر سے واپس لوٹنے لگے۔ اب اس کی خوشی ہی نصیر کی خوشی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔